This is going to be a conversation, ladies and gentlemen, on legacy versus disruption. What will shape the future of Indian real estate? I repeat the topic for you all once again. This is going to be about legacy versus disruption. What will shape the future of Indian real estate? This conversation is going to be moderated on stage by Mr. Neeraj Bansal, who's the partner and head India Global at KPMG in India. To tell you all more about him, Neeraj ji has over 27 years of experience in risk consulting practice and has significant experience in supply chain function in FMCG, consumer durables, pharma, EPC, ENR, textile sectors, and many more. He has serviced 300 plus clients across 15 countries, including India, the US, Europe, Middle East, Southeast Asia, and has been a member of the KPMG Global BCRE steering group of JVs in ASEAN, Asian Central Government Task Force on Project Time and Cost, industry associations such as FICCI, RICS, NAREDCO, CREDAI, and CII, and has led industry association delegations to Asian and Middle Eastern countries as well. A big round of applause for Mr. Neeraj Bansal, please. Thank you so much. Ladies and gentlemen, come on, when I say big round of applause, it has to match in terms of the audio as well. So can I please have big round of applause? Yes, that's how we do it. Bahut bahut shukriya. My eminent speaker, who's going to be joining us over here, is the Honorable Chairman and Managing Director at Gores Group, President CREDAI NCR. Manoj Goude's leadership and vision have propelled Gores Group to great heights. Under his guidance, Gores Group has consistently delivered projects with superior construction quality and, most importantly, timely possession over the last 3 decades. He strongly supports the Housing for All mission, and the group has made significant contributions in the affordable housing segment. Today, the group has diversified into various sunshine sectors such as education, retail, sports, hospitality, infrastructure, media, and most importantly, energy. And joining him as well over here, we have a visionary in the true sense of the term. He's the founder and honorable chairman of Signature Global India Limited, Mr. Pradeep Agarwal ji, founder and chairman of Signature Global India Limited and chairman, National Council on Real Estate, Housing and Urban Development. It's a visionary who has transformed Delhi NCR's housing landscape completely. From financial markets to real estate, he has actually built Signature Global into one of India's top 10 listed developers with 50 plus projects spanning affordable, mid-housing, premium, and township segments. He's honored as an iconic leader and, most importantly, a pride of India. And he champions sustainability through green building practices via the Signature Global Foundation. He has led initiatives like the Ek Ped Maa Ke Naam and Project Pathshala, impacting thousands of lives positively. A leader of foresight and purpose, he continues redefining Indian real estate to take it forward. Can I have a big round of applause for all our speakers, please, for this exclusive conversation? And I request all our speakers to please kindly join me on stage right now to take this forward. A big round of applause, ladies and gentlemen, for all our stalwarts for this exclusive conversation, and we look forward to hearing you. And just a bit of a request, can we please make the seating arrangement happen as per the photo that is aligned over here? I'll request everybody to sit as per the photographs over here. Thank you so much, sir. Pleasure to have you. Thank you, sir. Pleasure to have you. I'll request all of you to take your seats as per the photos aligned over here. So, yeah, thank you so much. And can we quickly update the timer for our speakers, please? Shukriya, you can keep it at 30. And, yeah, sir, over to you all. We look forward to hearing all of you. Good evening, everyone, and thank you so much for this time, as well as pleasure to be with you all again there. Wonderful, and thank you so much for the organizers for organizing this nice event, and to my fellow panelists, Manoj ji, Pradeep ji, thank you so much for your time. Really appreciate it. And before we dive into the discussion, I mean, we've had some very good comments, and also during the day also there was so much of proceedings around it. But I think हम लोग Delhi NCR में है, and Delhi NCR और Gurgaon specifically, if you are there, I think it's been in the news lately, you know, for various things around it. But I think there has been some great development that has happened over the last few years in Gurgaon, and we've seen some great, I would say, whether it's the kind of apartments getting built up, kind of housing societies coming up, also the kind of opportunities that Gurgaon has given to a lot many citizens in the country as well who migrated to Gurgaon, and also the Gurgaon residents as well. So great to be with you today in this area. And real estate, अगर हम देखते हैं तो it's at a turning point
at this point in time. There is a lot more development that has happened. We are seeing some very innovative construction technologies which are coming in. We've seen a lot different way of selling as well, which has emerged in the sector. Technology, is happening in a very big way. I've been part of several transformation initiatives within the real estate industry, whether it is in the north or the west or the south. We see the kind of adoption that is happening of technology in the last few years, particularly whether it's enterprise software, whether it's customer facing software, whether it is in terms of internal organization, from the point of view of, project management. There is a very, very strong adoption of technology that we see today. And Millie is over here. I think the sustainability or green building, has been earlier it was seen as a big challenge or an issue right now, but it's become mainstream now. It is something which has become a way of life, specifically for when you look at the commercial office space. A-grade development is something which is naturally has to get to a green building certified side of it there. That's the key demands of the customer also on it. And we've seen how gladly and how appropriately our developer community has adopted that and is bringing up some of the best developments which are there in this area. And when we look at some of the challenges also around it, I think we've seen that legacy firms, who've been there for a very long period of time, how they have transformed and changed their models as well, to be able to adopt to these changing times, whether it is in internal operations, getting into more professionals set up around it, or getting professional on board, whether it is in terms of how they approach, in terms of the customer side of it also. We've seen a lot of that change happening. And also, we've got Mr. Agarwal over here. Pradeep ji has been, I would say, a torch bearer in terms of, how seamlessly, one has moved from affordable to mid-segment to luxury as well. I think it's one of the best examples that one could see today in the country in that area. Something which is very difficult to do in terms of, maintaining a branding position in all three segments around it there. But in terms of, I think, towards the topic for today, we've got a very nice topic of saying legacy versus disruption. I did speak about a few, but, we have the gentleman over here who can actually narrate this. They are living through it, so they can narrate it the best. And we would ask them a few questions, and if there's time permit, then we would certainly give an opportunity for a couple of you to ask, some question as well there. And with that, let me just, start with the first question, if I may say that, there. I think, we have seen that before 2017, we were in a particular journey, how real estate was getting perceived, sold, as well as, experienced by whether it's a developer, whether it's a contractor, whether it's a buyer around it there. And before RERA got introduced, and RERA को भी अब 7 साल 8 साल होने वाले, 2025 आ गए हम लोग. There has been some considerable experience of 8 years behind us around it. And also now we are at a journey where we can see that there is so much of maturity that is there in the system. So, and there is a way forward as well. So slightly bit of a, I would say, a loaded question. How do you see the changes? If you were to, Manoj ji, look at, because you've been in the industry for a very long time, there, if you could say that, what are the 2-3 things that you think 2017 से पहले dominate करती थी? 2017 से अब में, what are the couple of things that you think have changed a lot? और अगर आपको कोई 1-2 मेगा ट्रेंड दिखते हैं जो अब 2025 के बाद में ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे, there. And प्रदीप जी, आपसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा there. Thank you, Neeraj. Definitely everyone knows the change before COVID and after COVID. 2017, or you can say before 2020, the entire real estate, especially NCR की जो market थी, वो entirely एक different level के ऊपर थी. Mostly affordable housing उस time जो है हो रही थी कि भाई किस तरह प्रधानमंत्री आवास योजना काफ़ी जो है लोग कर रहे थे, उसके PMI के अंदर काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहे थे. And suddenly after COVID, the change in behavior, the change in approach, जो एक आया mindset जो change हुआ कि the importance of house, ये कोविड में सब लोगों को सिखाया. जब लोग अपने घरों में बंद रहे जो है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ हाउस इज़ जो है वो समझ में आई. एंड द डिमांड इज़ ड्रास्टिकली चेंज आफ्टर कोविड जो है. द पीपल वांट डिफरेंट एमिनिटीज़, बिगर हाउसेज, more facilities, more green areas. The designing is entirely changed. The common facilities जो है उसमें काफ़ी change आया. So before COVID and after COVID, and one thing I want to say,
after COVID, a real estate is changing very fast, very fast. So since the middle class and the upper middle class segment is growing with the economy growing, India is growing. We are just right now number 3 in the entire world and heading towards the number 3 position. Number 4 पे अभी 3 पे आने वाले हैं. तो जिस तरह से जिस इकोनॉमी बढ़ रही है, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के पास इनकम बढ़ रही है, तो हाउसिंग की जो डिमांड वो चेंज हो रही है. तो देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट चेंज. जो पिछले 20 साल में हमने चेंज देखा 2000 to 2020, वो पिछले 5 साल में हम 2020-21 के बाद जो है उससे भी ज़्यादा चेंज देख रहे हैं. और आने वाले 5 साल के अंदर ये चेंजेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपको देखने को मिलेंगे. इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइनिंग, द स्काई लाइन ऑफ द NCR विल डेफिनेटली चेंज. जिस तरह से गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हुई है, स्पेशली मैं उस साइड की बात करूँ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, जिस तरह से FAR या बाई लॉज जितने भी आए हैं, यू विल सी नेक्स्ट 5 ईयर द एंटायर स्काई लाइन ऑफ द नोएडा विल चेंज. मिनिमम 40-50 स्टोरी बिल्डिंग्स आपको सारे देखने के मिलेंगी. एंड वेरी इंटरनेशनल, ट्रूली इंटरनेशनल डिज़ाइंस in terms of internal spaces as well as outer spaces. You will find a drastic change in that. So thanks नीरज जी. देखिए मनोज जी ने जैसे बताया अभी कि काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं. मैं बिफोर 17 और आफ्टर 17 में कुछ जो बेसिक बहुत फंडामेंटल चीज़ें चेंज देख रहा हूँ. उसमें ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन और प्रोमोटर माइंडसेट का एक चेंज होना, ये मुझे लगता है रियल एस्टेट में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर रहा है. देखिए किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी मस्ट है. जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो नंबर 1 पे होना बहुत ज़रूरी है. और जो प्रोमोटर माइंडसेट है, जो भी उसके स्टेक होल्डर्स हैं, उनका जो विज़न है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. सो देखिए बिफोर रेरा और आफ्टर रेरा रिजीम में मुझे ये गैप दिखाई दिया साहब. क्योंकि रेरा के बाद जो फ्लाई बाय नाइट वाले जो डेवलपर्स थे, उन लोगों को ये बात समझ में आने लगी कि ये काम बन नहीं पाएगा. क्योंकि जिस तरीके के प्रोविज़न लॉ में किए गए हैं, तो जो हार्ड एंड मनी कस्टमर की आपके पास आ रही है और जो कमिटमेंट आप उसे दे रहे हैं, अगर आपने उसे पूरा नहीं किया तो आने वाला वक्त आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा. और देखिए ये लॉज होने बहुत ज़रूरी थे, खास करके ऐसी इंडस्ट्री जो इस देश में सेकंड लार्जेस्ट सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हो, जिसका पूरी GDP में एक बहुत बड़ा रोल हो, और उसके ऊपर रेगुलेटर का ना होना, मुझे लगता है वो भी इस इंडस्ट्री को इतना लेटली ऊपर लेकर आया. ये शायद अगर पहले होता तो ये जो चीज़ें हमने फेस की हैं शायद वो नहीं करते. लेकिन एनीवे देर आए दुरुस्त आए. लास्ट 8 साल में इस इंडस्ट्री ने बहुत सारी चीज़ों में चेंज देखा है. इवन जैसा मनोज जी ने भी कहा, आफ्टर कोविड सडनली एकदम यू टर्न हुआ और पूरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री चेंज हो गई. लोगों को इम्पोर्टेंस जो है घर की वो नज़र आई. लेकिन मुझे जैसा भी हम जिक्र भी कर रहे थे बाहर भी जब खड़े थे, कि ये अभी केवल फाउंडेशन क्रिएट हुई है. अक्सर लोग पूछते हैं कि जी ये इतना प्राइस हाइक हो गया, मार्केट सैचुरेटेड है, लोगों के पहले बहुत दूध से जले हुए हाथ थे, तो बड़ा डर लगता है उनको कि क्या फिर से वैसा ही सीन तो क्रिएट नहीं होगा. सो मैं बहुत फर्म बिलीवर हूँ कि मुझे लगता है आने वाला जो 20 साल है वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए नेक्स्ट, यानी जो आज हमारे थॉट में नहीं है, उस लेवल तक ये इंडस्ट्री पहुँचने वाली है. अभी जैसे अनुराग जी भी बता रहे थे और बड़ा एक फ़नी वे था कि जितना दुबई के अंदर रियल एस्टेट इस 1 साल में सेल हुआ है लगभग 200 बिलियन, उसके अंदर जितनी ब्रोकरेज पे की गई है लगभग 5%, उतना तो हमारे सारे लिस्टेड डेवलपर ने माल नहीं सेल किया. सो आप ये समझिए कि इस देश में जहां 140 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है, आज हमारे जितना भी जो यूथ है वो अर्निंग करने लगा है, ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रही है, ऐसे में जो घरों की जो सप्लाई है वो बहुत कम है. आज दिल्ली NCR में लगभग 4
करोड़ से ज़्यादा की पॉपुलेशन है, और अगर टोटल जो सप्लाई कहें ऑल द अक्रॉस द सेगमेंट, वो लेस देन 1 लाख यूनिट भी नहीं है, शायद वो 50-60-70 हज़ार पे ही होगी। सो ऐसे में कैसे पॉसिबल है कि लोग अपने घरों को अपग्रेड कर रहे हैं, जो 1 BHK में था वो 2 BHK में जा रहा है, 2 BHK वाला तो मुझे लगता है ये सेगमेंट के अंदर केवल एक चीज़ जो अभी भी जिसकी और ज़्यादा ज़रूरत है, एक एक्सपीरियंस ऑफ द कस्टमर जो है उसको चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज का जो कस्टमर है वो बहुत एजुकेटेड है, बहुत चीज़ों को समझता है। अगर आपने उसके एक्सपीरियंस को बेटर किया तो यकीन मानिए ये जो मार्केट है आने वाले वक्त में इतनी बड़ी मार्केट क्रिएट होने वाली है जिसके नंबर्स को शायद हम अभी एज्यूम भी नहीं कर पा रहे हैं। Very nice to that. But and agar if you were to look at it, like say just a few years down the line, right? That agar hum 2035 की बात करें, right? How do you see the vision for real estate in India, right? As a developer and also as a, I would say, a participant in this entire infra growth that is going to happen, because we are saying that we want to be a developed nation by 2047, and जो हमारी urbanization हो रही है, मतलब we have got different stats available, but almost by different numbers they say कि 15 crore people would come into the urbanized category by 2030 itself. तो अगले 5 सालों में ही आ जाएंगे, right? तो जो डिमांड हमारी सिटीज़ में आने वाली है उसको देखते हुए आपका क्या विजन रहेगा रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए एज अ डेवलपर? एंड मनोज जी, इफ़ यू कैन ऑल्सो शेयर योर थॉट्स इन दैट पार्ट। सो देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इस वक्त, और लास्ट 10-12 सालों में तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी बड़ा काम हुआ है। जितना बड़ा रोड डेवलपमेंट लास्ट 10 साल में दिखाई दिया है, मुझे लगता है देश में जब से देश आज़ाद हुआ है उसके बाद सबसे ज़्यादा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लास्ट 10-12 साल में हुआ है। तो मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है ऑफ कोर्स रियल एस्टेट को सबसे पहले होता है, नए एरियाज़ खुलते हैं, थोड़ा सा जो ट्रैवलिंग है वो इजी होती है, अप्रोच लोगों की थोड़ा सा जो थोड़े फार एरियाज़ हैं वहाँ तक भी जाना इजी रहता है। मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा कि 2030 तक तो ये जो आज मार्केट है लगभग 400-500 बिलियन के नियर अबाउट टोटल इंडिया की रियल एस्टेट मार्केट है, ये 1 ट्रिलियन से भी ऊपर मिनिमम से मिनिमम जाने वाली है। एंड सबसे बड़ा जो सेगमेंट है मुझे लगता है वो अफोर्डेबल हाउसिंग का रहने वाला है इसके अंदर अभी भी, क्योंकि कुछ लैंड प्राइजेज बढ़ने के चक्कर में रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो बढ़ने की वजह से थोड़ा सा जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब हुई है अफोर्डेबल हाउसिंग की। लेकिन मुझे लगता है आने वाले वक्त में अफोर्डेबल हाउसिंग फिर से की ड्राइवर बनेगा, कुछ ना कुछ नए नॉर्म्स, न्यू नॉर्मल सेट होगा, क्योंकि अभी भी पीछे एक मैं कॉन्फ्रेंस में था तो जो जिस तरीके का कम्पिटिशन दिखाई देता है गवर्नमेंट की तरफ से, मुझे लगता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग और मिड इनकम सेगमेंट एक नया मुकाम हासिल करेंगे, अभी भी स्टिल कर रहे हैं, लेकिन रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं यानी थोड़ा सा मैं बायस्ड हूँ, सॉरी, ये एज ए डेवलपर, लेकिन मैं आज भी जितने डेवलपर्स हैं जो भी आज काम कर रहे हैं मैं उनसे यही यानी अपने एक्सपीरियंस पे उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप अपने सिस्टम्स को बड़े बनाइए, बेहतर बनाइए। इतना बड़ा काम आप लोगों के पास आने वाला है जो शायद हम अज्यूम नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, प्रदीप जी ने ठीक ही कहा, और इसके कुछ बेसिक फैक्ट्स ऑफ नंबर्स भी हैं जो ये प्रूव करते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर रियल एस्टेट विल बी द बैकबोन ऑफ द एंटायर इकोनॉमी। करीबन अभी हम रफली अराउंड 32%, 33% अर्बनाइजेशन है एंटायर इंडिया के अंदर, जो अगले 10 साल के अंदर दैट विल रीच मोर देन 40-45%। तो ये जो 10 से 15% का जो अर्बनाइजेशन जो होने वाला है, इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है रियल एस्टेट की एवरी फॉर्म, जो घर से लेके चाहे ऑफिसेज, घर, होटल या वेयर हाउस, जो भी इस रियल एस्टेट से रिलेटेड है, दैट इज़ द ट्रू नंबर। इकनॉमी जिस तरह से बढ़ रही है और जिस तरह से ये सारे नंबर्स जो सामने आ रहे हैं अर्बनाइजेशन के, रैपिडली ग्रोथ हो गए। ऑल्दो 8-10 जो मेट्रोज हैं, इसके अलावा भी छोटे छोटे सेंटर्स जो है आपको देखने के, रीजनल सेंटर जो टायर 2, टायर 3 सिटीज़ हैं, वो भी अपना शेप जो है वो चेंज करेंगे। बट अर्बनाइजेशन इज़ बाउंड, वो हो रहा है और तेज़ी से जो है वो होगा। सेकेंडली, द कंट्रीब्यूशन इन द GDP ऑफ द रियल एस्टेट, जो भी आप डेवलप्ड नेशन देखते हैं, चाहे US हो, चाहे आप चाइना हो, इनका लगातार कम से कम 10 से 15 साल जो कंट्रीब्यूशन था वो अराउंड 20%
वो जीडीपी के अंदर रहा। अभी हम रियल इस्टेट का जो अगर करें तो डायरेक्टली 7-8%, बट इनडायरेक्टली क्योंकि वी आर कंज्यूमिंग मोर देन 250 आइटम्स इन रेजिडेंशियल, तो इनडायरेक्टली वो 14-15%, 16% हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन ये 8% से मेरे हिसाब से अगले 10 साल के अंदर ये करीबन 12 से 15% को टच करेगा। तो ये जो दो नंबर्स हैं जो है अर्बनाइजेशन का और जीडीपी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन टू द रियल इस्टेट जो है, ये दो नंबर ऐसे हैं जो आने वाले टाइम के अंदर इसकी टोटल स्टोरी ग्रोथ को जो है प्रोजेक्ट करते हैं। ऑल्दो अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रदीप जी ने बात करी, लेकिन कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और अर्बन एरिया के अंदर जो लैंड की जो कॉस्ट है प्लस कंप्लाइंस कॉस्ट, वो इतनी ज़्यादा इसके अंदर बढ़ गई है कि अफोर्डेबिलिटी की डेफिनेशन जो है डेफिनेटली चेंज हो गई है। जो अफोर्डेबिलिटी पहले 1 करोड़ रुपए से नीचे थी वो एनसीआर के अंदर आई थिंक अब 1 करोड़ प्लस 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक पहुंच गई है। उसी के साथ साथ लेकिन लोगों के जो है अर्निंग्स और वो भी धीरे धीरे जो है वो भी बढ़ रहे हैं। तो अफोर्डेबिलिटी की डेफिनेशन डेफिनेटली चेंज हो रही है। वी आर ऑल्सो जो है वर्किंग क्लोजली विद द गवर्नमेंट कि 2017 के टाइम पे एक डेफिनेशन अफोर्डेबल हाउसिंग की जो है डिफ़ाइन की गई थी, वो अभी तक जो है वो चेंज नहीं हुई है। होपफुली आने वाले टाइम में वो 45 लाख रुपीज़ की जो अभी एक सीलिंग है वो बढ़ के जो है 75 या 80 लाख के आसपास हो जाएगी। तो सम मोर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे जो है, बट इट इज़ बाउंड दिस ग्रोथ जर्नी जो है इसे को आप कोई रोक नहीं सकता मेरे हिसाब से। ऑल्दो आई एम बहुत रियल इस्टेट वो हैं और अपने सेक्टर को पुश कर रहे हैं, लेकिन आप अगर और भी नंबर्स देखेंगे, जितने भी नंबर्स आपको डिफरेंट जगह से मिल रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स आपके पास ज़्यादा नंबर्स होते हैं हमारे अनुराग जी और आप लोगों के पास, तो दिस ऑल आर इंडिकेटिंग टूवर्ड्स द great future for real estate in this country. Thank you. And अगर हम अब थोड़ा सा focus on the Delhi NCR right around it. Gurgaon was an alternative to the Delhi side of it there. Noida also became a very big alternative to Delhi. Land prices, rates, everything was kind of going up, and also greenfield development was not possible within Delhi. With the kind of land pooling policy and everything, things are changing, but still there was a limitation on that. Now, अगर हम नोएडा की बात करें, Noida had become a very important alternative, to Gurgaon also, in terms of affordability and other perspective. But there are some fantastic developments, जैसे नोएडा में भी हो रहे हैं, जहाँ आपने बताया, there are so many branded residences coming in last 3 years के अंदर. Rates have also become, very significantly high in Noida also on it. So if you were to suggest, Manoj ji, आप पहले and Pradeep ji, if you can so say that अगर हम Delhi NCR पे focus करें, so from there are 2 points. One is that luxury, there is a demand, and there is I would say a standard getting set of saying 10 crore plus, in some sense around it there. Gurgaon, if you look at it, and then even Noida also 7 crore, 6 crores has become like a minimum benchmark now in a luxury segment around it. Likewise, affordable you touched a bit as well, but if you were to see that, how what are the possibilities, of increasing more supply in the affordable space, so वो क्या greater गुड़गांव रहेगा या ग्रेटर नोएडा ही रहेगा या उसके आगे फर्दर जाना पड़ेगा? What would you think is the vision for Delhi NCR there in that? Traditionally, दो सेंटर हमेशा से काम किए हैं, गुड़गांव एंड नोएडा, ग्रेटर नोएडा, एंड द न्यू सेंटर कमिंग अप द यमुना एक्सप्रेसवे. द यमुना एक्सप्रेसवे इज द लार्जेस्ट लैंड बैंक इन एंटायर इंडिया. उतना बड़ा लैंड बैंक किसी के पास नहीं. आई थिंक जो नेक्स्ट स्टोरी जो होने वाली है एनसीआर के अंदर आफ्टर जो कमिंग अप द लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन जेवर, तो यमुना एक्सप्रेसवे के पास इतनी बड़ा लैंड बैंक है कि नेक्स्ट अफोर्डेबल जो एक मिड अफोर्डेबल आप कह सकते हैं, द फ्लैट्स बिटवीन द रेंज ऑफ 1 to 2 करोड़ रुपीज़ जो सप्लाई है मैक्सिमम एट दैट साइड. एंड गुड़गांव का मेरा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस का मैं प्रदीप जी ज़्यादा बताएंगे, डेफिनेटली यहाँ पर भी कुछ नए सेक्टर्स थोड़ा सा दूर जाके जो है डेवलप हो रहे हैं. बट ये दो सेक्टर्स हैं और दैट इज़ अ वेरी स्वीट स्पॉट बिटवीन 1 and 2 करोड़ और 2.5 करोड़ जो कि डिमांड सबसे ज़्यादा है. ऑफ कोर्स लग्जरी तो हमेशा हर मार्केट में रहती है, कुछ लोगों को जो है चाहिए, लेकिन दैट इज़ वेरी लिमिटेड टू द लिमिटेड सप्लाई, बट स्टिल द डिमांड इज़ देयर क्योंकि लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, लोगों की अप्रोच चेंज हो रही है. इंटरनेशनल लेवल के जो है ब्रांडेड रेजिडेंसीज आप देख रहे हैं. गुड़गांव में थोड़ा पहले आए थे, अब नोएडा के अंदर भी कई प्रोजेक्ट्स उसके अंदर आए. तो स्टिल दैट डिमांड विल बी देयर, बट मैक्सिमम डिमांड इज़ अप टू द 5 करोड़ अपार्टमेंट वो रहेगी और उसकी सप्लाई भी देखने को आपको नोएडा, ग्रेटर नोएडा और स्पेशली यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर ज़्यादा मिलेगी आने वाले टाइम. अच्छा सॉरी. सो रिसेंटली हमने कुछ ऐसे डेवलपमेंट किए हैं
जो फर्स्ट टाइम हमने टेस्ट किए, जैसा मनोज जी ने भी कहा, थोड़ा सा जो मेन कोर लग्जरी वाले एरियाज़ हैं उनसे थोड़ा सा फार, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त काफ़ी बेहतर हुआ है, उससे जो लैंड्स हैं वो थोड़ा पास में आ गई हैं तो वहीं, लेकिन थोड़ा सा ट्रैवल टाइम कम हो गया उसमें। सो हमने अभी 2 टाउनशिप, एक सोना रीजन में, एक मानेसर रीजन के अंदर लगभग 150 एकड़ की 2 टाउनशिप हमने बनाई हैं। एंड जिस वक्त हमने वो डिज़ाइन की, हमारे थॉट में ऐसा था नहीं कि इसकी डिमांड इतनी बड़ी क्रिएट हो सकती है और मिक्स लैंड यूज़ का ऐसा कोई एग्जांपल भी सेट हो सकता है। तो आप देखिए कि उसमें इंटरनेशनली आर्किटेक्ट जो हैं वो हायर किए, और जो मिक्स लैंड यूज़ का एक जो मॉडल बनता है, जो मेरे ख्याल से गुरुग्राम में फर्स्ट टाइम किसी ने इस टाइप से डेवलपमेंट की है। एक तो डिमांड उसकी बहुत ज़बरदस्त रही है, लोगों ने हाथों हाथ उसे लिया है, और वो एक नया मॉडल डेवलप हो गया। तो ये सभी डेवलपर्स के लिए एक जो फर्स्ट जो वॉल ब्रेक करनी होती कि किस तरीके से आगे जाया जाए, तो उन सब के लिए, जैसे बताया अभी मनोज जी ने भी, कि जो यमुना एक्सप्रेस वे है वहाँ पर बड़ी लैंड्स अवेलेबल हैं, वहाँ भी ऐसी चीज़ें खुल रही हैं। सो आज जब सेंटर ऑफ द सिटी के प्राइजेज लैंड्स के बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो ऐसे में जो आउटकट्स की लैंड है उनके ऊपर डेवलपर्स को काम करना पड़ेगा, और मुझे लगता है थोड़ा सा हेजिटेशन छोड़कर आगे आना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में अगर आपके चेक एंड बैलेंस प्रॉपर हैं तो आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त बहुत सारी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर आप उनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दायरे में प्रॉपर आते हैं और अपने सिस्टम को प्रॉपर बना पा रहे हैं, तो बड़े बड़े चेक्स के साथ वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, डेट फर्म में भी, इक्विटी फर्म स्टाइल में भी, हर तरीके से। सो मुझे लगता है कि ये एक जो मॉडल है खास करके बड़ी टाउनशिप का, ये आने वाले वक्त में इवॉल्व होता हुआ और ज़्यादा दिखाई देगा। हम तो ऑलरेडी 2 टाउनशिप पे काम कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में और 2-3 टाउनशिप हो सकता है हम उसे जल्दी ही लॉन्चिंग की तरफ लेकर आएँ। लेकिन मुझे लगता है बहुत सारे डेवलपर्स के लिए आए जगह है काम करने के लिए, और आने वाले वक्त में ये ऐसी बड़ी टाउनशिप ही जो डिमांड है उसको कैटर कर सकती है। The time will always never be enough, for the discussion. But मैं 3 छोटे-छोटे questions आपसे पूछूंगा, there. If you can give very short answers, to that there. And these are not easy questions around it. So one, in terms of, if you were to, Manoj, you've been in the industry for a very long time. But if you can go back to your first project, right, and give some advice to yourself, what would that be? The first project was very small, or only the 6 apartment project in 1995. That time was, we are the first generation businessmen, no capital support, no nothing, जो है legacy with us, और legacy we have to create our own, जितना भी आज तक किया है जो है। तो definitely उस time अगर more banking या organized हम अगर ज़्यादा होते, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेस से शुरू किया है, तो अगर मेरे को लगता है कि वो स्केल हम और ज़्यादा जो है, जो आज हमने अचीव किया है, उसको और पहले से अचीव जो है कर सकते थे। एंड एक जो लेगेसी हमने शुरू से रखी जो है, दैट ऑन टाइम, एवरी टाइम ऑन टाइम प्रोजेक्ट्स की, एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन, आई थिंक 2 चीज़ें जो है वो अभी तक हमें सपोर्ट कर रही हैं, कि वो चीज़ मैं और लोगों को भी, जितने भी अपने फ्रेंड्स हैं, अपने डेवलपर्स हैं, जो नए डेवलपर्स आ रहे हैं, पुराने आ रहे हैं, जिन लोगों ने इस कोर वैल्यू को पकड़ के रखा, आज वो चाहे जितना भी डिस्टर्बेंस इस इंडस्ट्री के अंदर हुआ हो, वो सब लोग जो है सर्वाइव कर रहे हैं। और बाकी जो लोग अपने किसी दूसरे इंडस्ट्री से इधर आए थे या वो आए थे, उसमें प्रॉब्लम जो है, तो मेरी एडवाइस बाकी लोगों के लिए और अपने लोगों के लिए भी है, ऑलवेज जो है इन्वेस्ट इन न्यू टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एंड द सबसे बड़ी बात, लोगों को क्या चाहिए, लोगों की पहचान, लोगों की ज़रूरत के हिसाब से अगर आप अपने प्रोजेक्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं, देन सक्सेस इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। सो नीरज जी, इसमें जो हमने सबसे पहला प्रोजेक्ट 2014 में लॉन्च किया था, ऑफ कोर्स बहुत सारी लर्निंग उसके बाद हमने ली हैं, किस तरीके से टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन किया जाए, क्वालिटी को बेहतर कैसे किया जाए, जो कस्टमर एक्सपीरियंस है उसको कैसे बेटर किया जाए।
लेकिन एक चीज़ मुझे इसमें सबसे इस लर्निंग में लास्ट 10 साल में मैंने सीखी है कि जो आपके साथ जो काम कर रहे हैं, खास करके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आप उनके साथ इन लाइन होकर काम करें अगर रियल में आपको बड़ा बनना है, क्योंकि उनके साथ सिर्फ पैसा नहीं आता, बहुत सारी ऐसी लर्निंग्स हैं जो एक्सपोजर उन्होंने वर्ल्ड वाइड लिए हैं अलग अलग तरीके से। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जो IFC है, जो वर्ल्ड बैंक की सब्सिडरी है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, 2018 में जब वो ऑनबोर्ड हुए हमारे साथ, तो उनका चेक एंड बैलेंस तो आप जानते हैं कितना डिगिंग करते हैं। तो हम बड़े इरिटेट से थे कि इतना जो पैसा देना है लेकिन इतना ज़्यादा। लेकिन उन लोगों के ऑन बोर्ड आने के बाद उन्होंने सिस्टम को जिस तरीके से डिज़ाइन किया, जिस तरीके से, क्योंकि ऑफ कोर्स आप उनसे डेट ले रहे हैं तो वो अपने तरीके से MIS क्रिएट करेंगे, आपके ऑडिटर से फ्रीक्वेंट बात करेंगे, आपके चैनल पार्टनर से बात करेंगे, आपके टीम मेंबर से बात करेंगे, CEO CFO से बात करेंगे। तो आपको ट्रांसपेरेंट भी होना पड़ेगा और जो बातें आप अपने कस्टमर्स के लिए कर रहे हैं वो आपको डिलीवर भी करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है ये लर्निंग लास्ट इतने सालों में रही है कि आपके साथ जो आपका इंस्टीट्यूशन है वो अगर आप बेटर क्वालिटी की ऑनबोर्ड करेंगे तो आने वाले वक्त में या कभी भी आपको सपोर्ट भी करेंगे और मुझे लगता है एक बेस्ट आपको लर्निंग भी देंगे। दूसरा, एडॉप्शन ऑफ द टेक्नोलॉजी, वो मुझे लगता है इजीली एक्सेप्ट करना चाहिए। होता क्या है, नॉर्मली कहीं ना कहीं कैपेक्स लगता है तो हम हाथ खींचते हैं पीछा, कैसे पैसा लगाएं, इतने करोड़ रुपए कैसे खर्च दें। मुझे लगता है टेक्नोलॉजी जो है वो खर्चा नहीं है, टेक्नोलॉजी के ऊपर किया हुआ एक्सपेंस वो आपका एक केवल ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो फ्यूचर में आके आपको पे करेगा। मुझे लगता है यही सबसे बड़ी लर्निंग है। और हमेशा विज़न जो है वो मुझे लगता है कभी भी शॉर्ट टर्म विज़न ना लें। एक चीज़, जितने भी डेवलपर्स हैं, मैं थोड़ा सा फाइनेंशियल मार्केट से आता हूं तो केवल एक चीज़ सजेस्ट कर रहा हूं जो मैंने खुद अपनी ऑर्गेनाइजेशन में की और मैंने इन्वेस्टर से, अपने शेयर होल्डर से सुना है, अपना कैश फ्लो पॉजिटिव रखें। अगर आपका कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं है तो दोबारा से अपनी कंपनी में जाइए, दोबारा से उसको रीथिंक करिए। अगर आपका कैश फ्लो नेगेटिव है तो आपकी जर्नी लॉन्ग नहीं होगी। अगर कैश फ्लो पॉजिटिव है तो आप चाहे थोड़ा आगे या पीछे, लेकिन आप सक्सेस हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। I think we are just out of time, so I may just if there is any one or two questions somebody has, please you raise your hand. I think just state your name as well as your question, and if you are asking a particular panelist, please ask for that. We would have loved to take more questions, but unfortunately we are running late, so we have to kind of keep things concise. Yeah. मेरा प्रश्न प्रदीप जी से है। सर, आज माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जन्मदिन है और जब इन्होंने इनकी सरकार जब बनी तो उन्होंने सर 2 नारे दिए थे। पहला नारा था स्वच्छ भारत अभियान का और दूसरा नारा था सर हाउसिंग फॉर ऑल। और हाउसिंग फॉर ऑल पे बहुत ज़्यादा फोकस था शुरू में, बट सर ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग की जर्नी है ये कहीं ना कहीं पिछले 10-15 साल में थोड़ी डाइल्यूट हुई है सर। कई रीजंस हैं उसके। लैंड कॉस्ट आपने बताया, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, मे बी द इकोनॉमिक्स डज नॉट एड अप। और सर एक दिल्ली NCR की, चूँकि हम दिल्ली NCR में हैं तो इसलिए दिल्ली NCR की बात करूँगा सर। एक बड़ी यूनिक चीज़ है सर जो दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। हर बड़े शहर में दुनिया में लोग सबर्ब्स में रहते हैं और CBD में काम करने आते हैं। हमारे यहाँ पे उल्टा है सर, लोग दिल्ली में रहते हैं और अपनी नौकरी करने वो नोएडा या गुड़गांव जाते हैं और उसकी वजह से जो ट्रैफिक कंजेशन क्रिएट होता है, पिछले 10-15 साल में सर जो दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, कई कारण रहे। क्या सर आप उस पोजीशन में हैं कि आप थोड़ा इन्फ्लुएंस कर पाएँ पॉलिसी मेकर्स को, सरकार को, कि ये लैंड पार्सल्स खोले जाएं, मास्टर प्लान में कुछ अफोर्डेबल हाउसिंग क्रिएट किए जाए? शायद ये आपके बिजनेस इंटरेस्ट में ना हो लेकिन मार्केट स्पेकुलेशन को थोड़ा रोका जाए सर, उन अफोर्डेबल जोन्स में उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कनेक्ट किया जाए, कुछ ऐसा कुछ इनोवेशन हो सर कि
दिल्ली के अंदर, बिकॉज मैं थोड़ा सा नीरज जी से सहमत नहीं हूँ कि ग्रेटर नोएडा में जाके और उससे बहुत ज़्यादा आगे जाके हम अफोर्डेबल हाउसिंग बनाएं, क्योंकि सर जिन लोग वहाँ रहना चाहते हैं जहाँ उनकी नौकरियाँ हैं, तो उस पर सर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बिल्कुल आपने ठीक कहा। आज हमारे जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उनका 75वां जन्मदिन है, उसके लिए उनकी बहुत बहुत बधाई। देखिए, गवर्नमेंट बहुत बहुत डेस्परेट है पॉलिसीज़ बनाने के लिए, लेकिन कई बार कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। क्रेडाई के माध्यम से, नेरेडको के माध्यम से बहुत रिप्रेजेंटेशन गई हैं अगेन एंड अगेन, एसओचएमसी के माध्यम से भी। एंड मुझे लगता है गवर्नमेंट बहुत सीरियस भी है इस चीज़ को लेके, बहुत पॉलिसीज़ पे ऑलरेडी काम हो रहा है। एंड ये बात बिल्कुल आपने ठीक कहा कि क्योंकि बहुत सारी जॉब्स हैं क्योंकि जो बढ़िया जो ऑफिस स्पेस हैं वो गुरुग्राम या नोएडा में बने हुए हैं, तो लोग दिल्ली में रहते हैं और ऑफिस में यहाँ जॉब करने आते हैं। इसका बेसिक रीज़न क्या है? वहाँ पे हाउसिंग अवेलेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है जो दिल्ली में उनको, जो भी चाहे वो रेंटेड हाउसेज में रहते हैं या पुराने टाइम से रह रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है पिछले कुछ सालों में ये थोड़ा चेंज हुआ है। 10-15 साल तो मुझे लगता है थोड़ा फार एरिया हो गया, लेकिन अगर पिछले कुछ टाइम की बात देखें तो केवल गुरुग्राम ने लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड की है। नोएडा ने, ग्रेटर नोएडा ने भी की है, और दिल्ली भी मुझे लग रहा है ऑन द वे है। आप आने वाले वक्त में मान के, मुझे यानी मेरा फर्म बिलीव है कि 2-3 साल में दिल्ली के जो ये एल जोन या जो एन जोन, जो लैंड पूलिंग जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये आपको आने वाले वक्त में दिखाई देगी। गवर्नमेंट को बहुत कंसर्न है, क्योंकि जब भी प्राइजेज हाइक होते हैं तो आप ये मान के चलिए जो कॉमन मैन, जो एक मिडिल क्लास फैमिली है, उसके हाथ से वो चीज़ निकल जाती है। आज गवर्नमेंट बिल्कुल फोकसली ये चाहती है कि इन जो मेन कोर एरियाज हैं इनमें घर बने। आप अगर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी देखें तो गवर्नमेंट का बहुत कंसर्न रहा है कि यहाँ पर घर बने, और फिंगर क्रॉस के आने वाले वक्त में अनाउंसमेंट दिखाई देंगी। और अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने के लिए हर डेवलपर तैयार है, लेकिन अल्टीमेट रॉ मटेरियल कॉस्ट है। क्योंकि अगर लैंड, जैसे आज दिल्ली में सस्ती लैंड है, आज भी दिल्ली के अंदर लैंड प्राइस 5-7 करोड़ रुपए का, जो ये लैंड पूलिंग के अंदर जो लैंड है उनका अंदर। लेकिन आप गुरुग्राम में चले जाएं तो 35-40-50 करोड़ रुपए लैंड है। नोएडा में तो और भी ज़्यादा एफएसआई कॉस्ट है। तो मुझे लगता है केवल लैंड प्राइस है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर वो दिल्ली में होता है अलाउ, तो आप मान के चलिए प्राइजेस भी कॉम्पिटिटिव होंगे। थोड़ा सा जो ये स्पेकुलेशन बनी हुई है ये भी कहीं ना कहीं एक बार थोड़ा सा कूल डाउन होगी। लेकिन फिंगर क्रॉस, आने वाले 10 साल में बहुत बड़े आपको प्रोजेक्ट्स आते हुए नजर आएंगे, विच आई बिलीव। Thank you very much everyone for listening to us, and thank you so much Manoj ji and Pradeep ji for sharing your thoughts. It was lovely speaking to you. Thank you so much. You truly made this exclusive conversation very, very exclusive for all of us. A big round of applause for all of them, please. Thank you. And what I'm going to do is I'm going to be requesting Professor Dr. Chiranjeet S. Shah, founding principal from Creative Group, to please kindly come up on stage and give away the token of appreciation to our esteemed guests over here. Can we please have sir over here? Thank you. Give a big round of applause for sir, please. Pleasure to have you, sir. Thank you. We'll quickly give the token of appreciation to our speakers. And then uske baad, I'll request the hotel staff to kindly remove the chairs from the stage. Ladies and gentlemen, can we please make some more noise, everybody? Thank you. We truly, truly value this gesture. Thank you so much. We'll do a nice, quick group photograph with all of you. एक सेकंड आप फोटो में आ जाओगे. This is the moment you need to clap and appreciate and make them feel valued. Yes, that's how we do it. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया दिल्ली.